Good morning, dear students. Good morning, teacher. So, we will going to learn today the chapter number 4. Everybody opened the textbook? Yes. Okay, so whatever the important points I will say, you have to underline. And you have to understand that what is the main concept of this chapter and what it says. Okay, so sit straight everybody and concentrate upon this chapter. Okay, so chapter number 4, medieval architecture, cities, merchants and craftsmen. So do you know what is medieval? Already this word you have learned. Middle age, very good. So write down everybody about medieval. Middle age we are going to learn. We have learned the various kings who ruled in our country in the middle age. Understood? हमने पढ़ा था कि रजा सुल्तान आपने देखा and many kings used to rule in our country. Today in this chapter you will learn that middle age architectures. Various types of buildings, various types of architectures, कुछ भी हम बोलते हैं जो भी उनका कंस्ट्रक्शन किया गया मिडल एज में. So various types of buildings, architectures का तो पता है ना, the types of building which were constructed. And cities, various important cities of middle age. Merchants means traders. What do you mean by merchants? Traders who do the business, import export का business करते हैं. And craftsmen, the various crafts work done by various people. Okay, तो you all aware. अगर आप कोई old building में देखते हो, अगर old कोई temples में जाते हो, तो you see the various construction. कभी देखा है देखा आपने? उनके जो architectures, जो उनका style है, वो हमारे जमाने से बिल्कुल अलग है. Yes or no? Yes. ये हम पढ़ेंगे पुराने जो मिडल एज के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, उनका जो क्राफ्ट वर्क है, उनका जो भी वर्क्स है बिल्डिंग्स में छोटे छोटे आपने देखा होगा. सो वो हम पढ़ने वाले डिटेल्स में. ओके, तो वेरियस मिडल एज आर्किटेक्चर्स, क्राफ्ट्समैन, सिटीज एंड ट्रेडर्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. Medieval architectures. First we'll move to the architecture's work. Various old buildings constructions work. Yes, Indian sculpture art forms have a unique and long heritage. हमारी जो heritage, हमारा जो देश का culture है, जो पुराने सदियों से आ रहा है. Okay, sculptures means किसी भी shape में mold कर देना, किसी भी shapes में mold करना. Okay, and heritage, it's a traditions जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है. Got it? जो हमारा पुराना क्या बोलते हैं, हमारे हिस्ट्री का एक गिफ्ट हमारे लिए. So that is the heritage. India is world famous for its rich culture, heritage of art and architectures. हमारा इंडिया पता है आपको फेमस है पूरे वर्ल्ड में. क्यों फेमस है? Because of our culture. हमारी जो संस्कृति हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, if you remember. Yes, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारे कल्चर्स है, हमारे जो हेरिटेज है, तो फॉर दैट आर्किटेक्चर्स है. फॉर दीज ऑल पर्पज अवर इंडिया इज वेरी फेमस ओवर द वर्ल्ड. यस, क्योंकि हमारा जो कल्चर आज का नहीं है, पुराने हजारों साल पहले का हम आज भी फॉलो कर रहे हैं. Yes or no? Yes. Since ancient times, in different periods, a lot of development has been there in architectures like stupas and stones inscriptions built in different provinces during Mauryan age. तो ये सीन्स मतलब अगर हम देखें तो जब से ये स्तूपास बना है तो हमारा कल्चर क्या बहुत पुराना है. लाइक स्तूपास हैं, स्टोन में इंस्क्रिप्शंस का आपने देखा, स्टोन्स में छोटे छोटे कार्विंग्स किए गए. आज भी आप पुराने टेम्पल्स में जाओ, यू विल जस्ट अमेज. आप अमेज हो जाओगे कि कैसे उन्होंने स्कल्पचर्स बनाया होगा, कैसे स्टोन्स में उन्होंने छोटे छोटे नाम लिखे होंगे, हाउ दे हैव डन. Yes or no? So that is the speciality of the medieval architectures.
तो हम देखिए इंस्क्रिप्शंस बिल्ट इन डिफरेंट प्रोविंसेस, अलग अलग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बिल्ट किए अलग अलग जगह में। ऐसा नहीं कि इंडिया के खाली एमपी में ही ये स्कल्पचर्स हैं। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेरियस इंस्क्रिप्शंस हैव डन, ओके, ड्यूरिंग मौर्यन एज। तो मौर्यन एज का हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। तो अलग अलग पीरियड्स थे, अलग अलग एज था कि उस समय कौन से डायनेस्टी रूल कर रहे थे हमारे कंट्री में। तो यहाँ पर आपका हमें दिखेगा मौर्यन एज में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस, आर्किटेक्चर्स वी गॉट। गांधार एंड मथुरा स्टाइल ऑफ स्तूपास। स्तूपास पता है ना आपको, बुद्धिस्ट का मेन जो होता है, जो उनके मॉन्क्स वहां कर जाकर रहते हैं, उसको बोलते हैं स्तूपास। यस, सो गांधार एंड मथुरा, दिस इज द प्लेस, गांधार एंड मथुरा यूपी में। स्टाइल ऑफ स्तूपास ड्यूरिंग पोस्ट मॉर्यन एरा। पोस्ट मॉर्यन मतलब मौर्यन के एज के बाद जो पीरियड था उसे हम बोलेंगे पोस्ट मौर्यन एज। अशोका सुना है ना आपने, अशोका द ग्रेट, ही वाज द चंद्रगुप्ता, मौर्य, अशोका, उन पीरियड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पैलेसेस, स्तूपास, पिलर्स, मोनेस्ट्रीज, mansions and temples during Gupta period were constructed। तो हमें बहुत सारे temples है, स्तूपास है, buildings है, pillars है, monasteries मतलब वही जहाँ पर monks जाकर रहते थे। These all we can see in the period of even Gupta period भी। जैसे मौर्य का पीरियड था वैसे वैसे गुप्ता पीरियड भी है, जहाँ पर गुप्ता का डायनेस्टी रूल हो रहा था हमारे कंट्री में, ओके। एक डायनेस्टी गया तो दूसरा डायनेस्टी हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ। Gupta period were constructed in the Middle Ages. The Pala, Pratihara, these all underline, ये भी डायनेस्टीज के नेम है। जैसे हमने मौर्यन देखा, जैसे हमने क्या देखा यहाँ पर, गुप्ता एज, लाइक पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, राजपूत, Delhi Sultanate, and Mughal rulers did a lot of work in the field of architectures, which includes stepwells, lakes, temples and mosques। like Gupta period, like Mauryan period, सब ने अपने अपने पीरियड के दौरान उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हमारे कंट्री में किया, ओके। तो वी कैन सी द वेरियस दिल्ली सल्तनत, जो भी दिल्ली में सल्तनत हमने देखा था, कुतुब मीनार, दिल्ली सल्तनत एरा, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया ये क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार। तो likewise many rulers, those who have came in the throne, तो उन्होंने सब अपने पीरियड में कहीं ना कहीं एक नया कंस्ट्रक्शन हमें लाकर दिया, बनाया उन्होंने, ओके। सो दैट थिंग, वेल स्टेप्स भी बनाए, बहुत सारे स्टेप्स, वेल्स, लेक्स, टेम्पल्स, मोस्ट। जब मुगल पीरियड हमारे देश में रूल कर रहे थे तो ताजमहल आपको पता है। तो वेरियस mosque, various construction also done by various rulers in our country, okay। so lot of work in the field of architectures। so सब ने अपने अपने periods में बहुत सारे construction हमारे country में किए। yes, that details only we are going to learn। different provinces means area, अलग अलग जो provinces थे, अलग अलग जो area थे इंडिया का, have developed आर्किटेक्चरल हेरिटेज इन देयर ओन वेज। ऐसा नहीं कि अगर अकबर ने ये बनाकर गए तो पीछे उन्होंने उनका कॉपी किया, कहीं ना कहीं इंस्पायर भी हुए, अपने स्टाइल से भी उन्होंने कंस्ट्रक्शंस कराया। यस, सो ऑल दे हैव डन अबाउट दैट पीरियड्स कंस्ट्रक्शंस। उन्होंने अपने हिसाब से अपने अपने अलग अलग स्टाइल के कंस्ट्रक्शंस किए जब तक वो रूल कर रहे थे हमारे कंट्री में। अंडरस्टूड? Okay, now next move to the sculptures। You all know what is sculpture, students? Anybody can give the answer? What do you mean by sculptures? जिसको हम easily mold कर सकते हैं किसी भी shape में। Yes, okay। The sculptures you can write, student, the art of forming solid objects that represent a thing, person, idea, etc. out of a material such as wood। Okay, तो ये example है किसी भी शेप में स्टैचू बनाना। यस और नो? तो यू माइट बी थिंकिंग कि इसका चेहरा सेम हो रहा है गांधी जी जैसा, कैसे उन्होंने स्कल्पचर? दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्कल्पचर।
ओके किसी भी फॉर्म में पर्सन को वुड है या कुछ भी मोल्ड करना किसी भी शेप में, सो दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर. द आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स imaginations is the form of decorating the rock, wood or metal with the help of chisel and hammer. So these were the instrument जो वो यूज करते थे. हैमर्स, चिसल्स मतलब कहीं ना कहीं खुदाई करने के लिए, कहीं ना कहीं अपना क्या बोलते हैं शेप्स करने के लिए. दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ दिस चिसल एंड हैमर टू गिव अ फाइनल शेप, टू गिव डेकोरेटिंग रॉक्स के लिए. रॉक्स को भी वो लोग डेकोरेट करते थे किसी भी शेप में. अंडरस्टूड. सो विद द हेल्प ऑफ हैमर्स एंड चिसल, किसी भी किसको वुड और मेटल विद द हेल्प ऑफ. ऐसा नहीं कि खाली वुड को ही वो शेप देते थे, इवन मेटल वर्क भी. तो आपने कई स्टैचूज देखा होगा कई पुरानी जगह में कि यहाँ पर गांधी जी का स्टैचू से मेटल से बनाया, कैसे बनाया है. तो दिस इज कॉल्ड स्कल्पचर्स. ओके टू गिव फाइनल शेप. तो वो भी एक कला है उनकी, वो भी एक आर्ट वर्क है. क्लियर. ओके नाउ नेक्स्ट आर्किटेक्चर. द वर्ड शिल्पशत्रा इज ऑल्सो यूज फॉर आर्किटेक्चर. अंडरलाइन. हम शिल्पशत्रा को भी क्या बोल सकते हैं, द अदर नेम हिंदी का वर्ड है. सो दैट इज द आर्किटेक्चर्स मीनिंग. आर्किटेक्चर बेसिकली मीन्स कंस्ट्रक्शन. उनका शॉर्ट फॉर्म आपको क्या समझना, आर्किटेक्चर्स मतलब कंस्ट्रक्शन. इन शॉर्ट कंस्ट्रक्शन. आर्किटेक्चर इज द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेस, टाउन्स, वेल्स. अंडरलाइन. वेल्स, फोर्ट्स, minarets, tombs, etc. A person who is proficient in architecture is called architect. जो उसमें प्रोफेशनल है, जो उसमें परफेक्ट है, जिसको शौक है, so that is called a architect. Okay, जिसको इसमें skilled है, something person who has skilled in this work, उसे हम बोलेंगे proficient. Understood? No, those who have skill in architecture. Now next is, let's understand about the architecture of India. अब हम architectures of India. In 7th standard, in old editions, I have taught about the medieval architectures. और आपके भी इस बुक में अभी medieval architectures हम पढ़ेंगे. In Gujarat, which architectures were there, that also we will know. Okay, so let's understand the various architectures of India. The period between 700 AD to 1200 AD was the Rajput era. Underlined. Rajput era, Nagar styles of the temple were prevalent in India. तो राजपूत एरा में नागर स्टाइल मतलब अलग अलग, सबने अपने अपने पीरियड में अलग अलग स्टाइल के कंस्ट्रक्शंस किए. मुगल पीरियड था तो मुगल पीरियड ने क्या किया, अपने मॉस स्टाइल में, जैसे पता है ना आपको डोम मतलब उनका कंस्ट्रक्शन हमारे कंस्ट्रक्शन से अलग है. अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथ के टेम्पल्स आपको अलग मिलेंगे. यस और नो, आपने देखा है कभी? चलो आप विजिट नहीं किए, बट हैव यू सीन समवेयर इन न्यूज़पेपर और इन टीवी कि उनका कंस्ट्रक्शंस कितना अलग था. सो ऑल era and all periods people just change according to that style. ओके उनको ये अच्छा लगा तो उन्होंने ये किया. किसी को लगा कि हमें हिंदू स्टाइल और मुस्लिम स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन करके कंस्ट्रक्शंस करना है, तो उन्होंने अपने हिसाब से सब कंस्ट्रक्शंस किए. ओके तो ऑल periods, all ages given the different types of construction. These include the temples of Khajuraho. अब नागर स्टाइल के कौन से टेम्पल्स बनाए? खजुराहो. जो एमपी में लिंगराज टेम्पल ऑफ पुरी, पुरी में अगर आप देखोगे लिंगराज टेम्पल एंड गोप टेम्पल्स ऑफ सौराष्ट्र. दिस इज द स्टाइल ऑफ नागर स्टाइल. ओके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स डेवलप्ड. अब हम जब देखें तो उन्होंने नागर स्टाइल बनाया व्हेन दिल्ली सल्तनत वर रूलिंग इन आवर कंट्री. जब सल्तनत एरा आया हमारे कंट्री में तो उन्होंने अपना अलग स्टाइल बनाया. यस, सो ऑल पीरियड हैव गिवन द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हिच वाज एसोसिएटेड विद इस्लाम. जब हमारे देश में मुगल एम्पायर आया, दिल्ली सल्तनत आया, तो उन्होंने अपना एक इस्लामिक धर्म वहां पर डेवलप किया
और उस टाइप से उन्होंने कंस्ट्रक्शंस भी वैसा ही किया। यस, तो आज मेन तो एग्जांपल आप देख सकते हो कितने सारे मॉस्क हमारे कंट्री में। यस, यस और नो? Yes. उसमें से ताजमहल तो सबको फेमस पता ही, ताजमहल तो कितना वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो वो भी अगर हम बोल सकते हैं तो दैट इज अ गिफ्ट ऑफ मुगल एम्पायर। रेड फोर्ट आपने देखा है, तो वो भी हमारे मुगल डायनेस्टीज ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। इन विच अरब स्टाइल इज प्रिडोमिनेंट इन द बिगिनिंग। अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत तो आज जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने इस्लाम स्टाइल का क्या बोलते हैं, अरब स्टाइल का बिगिनिंग में उन्होंने शुरुआत की। द थ्री मेन स्ट्रक्चर्स इन दिस आर्किटेक्चर्स आर द मॉस्क, द टॉम एंड द रोजा। तो ये तीन स्टाइल के कंस्ट्रक्शन किसके थे? दिल्ली सल्तनत पीरियड जब रूल था तो उनका स्टाइल कैसे था? मॉस्क, मॉस्क है ना, मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे मॉस्क में, तो उन्होंने उस टाइप का कंस्ट्रक्शन हमारे इंडिया में किया। अमॉन्ग द मेन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिल्ली, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हौज ए खास, Alai Darwaja and Siri Fort are there. So these are the various names of constructions of Islamic style. Okay. The mosque and canals built by Firoz Shah are unique. Underline, जो फिरोज शाह जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो उनका जो मॉस्क और कैनल्स बनाया था उन्होंने, that were also famous. कोई फेमस हुए, कोई कंस्ट्रक्शन ऐसे ही थे। Understood? The Muslim rulers of Gujarat, Bengal and Malwa built many structures during this time. तो मुस्लिम रूलर्स ऑफ गुजरात, बंगाल के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने फिर ये सभी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बिल्ड किए। The Bhadra Fort and Jama Masjid of Ahmedabad, सोना मॉस्क ऑफ बंगाल आर इम्पोर्टेंट। तो आपने कभी सुना ये सब नाम कि भादरा फोर्ट है कि नहीं है? तो आप नेट में सर्च कर सकते हो अपने फोन में, जब आप खेलते हो गेम्स, ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दिस इंपॉर्टेंट प्लेसेस, यू विल गेट द एटलीस्ट पिक्चर तो आप देख सकते हो ना कि हाउ द भादरा फोर्ट विल बी, हाउ द जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, सोना मॉस्क ऑफ बंगाल आर इम्पोर्टेंट। द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़, ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये विजय स्तंभ है, बट कुंभलगढ़ बिल्ट राणा कुंभा। जब राजस्थान में जब राजस्थानी जब रूल कर रहे थे तो उसमें से राणा कुंभा ने क्या बनाया? कुंभलगढ़। यस, कुंभलगढ़ तो मेरे गांव के नजदीक का है। आई यूज्ड टू विजिट मेनी टाइम्स दिस कुंभलगढ़, वेरी नाइस प्लेस। यस, एंड कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ ऑफ चित्तौड़, ये दिख रहा है आपको, ये चित्तौड़ प्लेस है राजस्थान का। अंडरस्टूड? तो ये भी फेमस है, यहाँ पर ये भी मैंने देखा हुआ है। सो वेरी, पद्मावती की जो स्टोरीज है वो चित्तौड़ की तो थी यहाँ पर। यस, तो ऑफ चित्तौड़ आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर्स बिल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो हमने शॉर्ट में बहुत सारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस की बात की, दैट दीज वर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ मुस्लिम स्टाइल, हिंदू स्टाइल में ये कंस्ट्रक्शन किया, राजस्थानी स्टाइल में। ओके, दीज वर द फेमस ऑफ आवर कंट्री। Got it? Now next, Sun Temple of Konark and Haushaleshwar Temple of Karnataka are some of the most special types of architectures of the 13th century. Sun Temple तो सबको पता ही है, it's a very famous, जहाँ पर सन का रेस पहले गिरता है, ये कोणार्क सन टेम्पल। The speciality behind of this temple means what? जो भी सन का जो फर्स्ट रेस गिरता है ना, उसके सीधे एंट्रेंस में गर्भगृह, मतलब जहाँ पर मेन भगवान का जो अंदर का मेन जगह है, उस तो उस जगह में उसका फर्स्ट रेस गिरता है, दैट इज कॉल्ड सन टेम्पल, विच इज वेरी फेमस। ओके, एंड हौसलेश्वर टेम्पल ऑफ कर्नाटक आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स ऑफ द 13। पूछेंगे 13 से कौन से सेंचुरी का सन टेम्पल ऑफ कोणार्क था? लाइकवाइज इन एग्जाम कैन आस्क, so be prepared. The Konark Sun Temple is located near the Bay of Bengal in Puri district of Odisha. Please underline. You have to write where it is located. This temple was built in the 13th century during the reign of King Narsimhavarma I of Gang dynasty.
डायनेस्टी। आपको भी डिफरेंट डायनेस्टी का नाम आ रहा है, देखा है? तो ये कौन से पीरियड में बिल्ड किया गया था? व्हेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हेन किंग नरसिंह वर्मन वन ऑफ गैंग डायनेस्टी वर रूलिंग इन चित्तौड़ का बेटा, ये तो ओडिशा है। Yes, we are talking about the Sun Temple of Konark. It was built during the period of Narsimha Varman, one of which dynasty? Gang dynasty. This chariot temple was built. Chariot temple मतलब एक chariot जैसा आपको नहीं दिख रहा है? आगे हॉर्स है और पीछे ऐसा बैठे हैं। Understood? तो इसे हम क्या बोलते हैं? The chariot temple was built. This chariot temple was built like the chariot of the sun, pulled by 7 horses. ऐसा लग रहा है कि 7 horses इस टेम्पल को पुल कर रहे हैं, इसीलिए हम इस टेम्पल को क्या बोलेंगे? चैरियट टेम्पल by 7 horses. It has 12 wide wheels. It has how many wheels? 12 wide wheels. This temple is also known as Black Pagoda because it is built of black stone. इस टेम्पल को हम और क्या नाम देते हैं? Black stone, Black Pagoda. Okay, pagoda means बुद्धिज्म का जो टेम्पल्स होते हैं उसे हम पगोड़ा बोलते हैं, इसे ब्लैक पगोड़ा भी नाम दिया गया है. Okay, with this I'll just pause. One page I have completed. Tomorrow we'll continue with the next page. Hope you all have understood. Please read again at home. Thank you. Have a good day.